वालेकुम गाइस, टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज इन बायोसिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, विच एंजाइम इज यूजिंग हियर, एंड द सेकंड थिंग इज that which raw material is being used for its formation. So glycine and the second coenzyme A will react to form heme. It is the first step. Then secondly, where this step will occur? This step will occur in mitochondria. It is the first step which will occur in mitochondria. Glycine and the second coenzyme A reacts with the presence of pyridoxal phosphate and ALA synthase in the mitochondria to form ALA, amino levulinic acid. सेकेंडली जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है वही होता है हमारे पास व्हाट विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ हीम बायोसिंथेसिस एंड व्हाट विल बी द रेट लिमिटिंग एंजाइम. सो कीप इन माइंड दैट ALA synthase is the rate limiting enzyme and the first step of heme biosynthesis, ALA formation, is the rate limiting step. Now let me tell you about Hammond effects and the drug effects. Hammond effects, जब परफायरिन प्रोडक्शन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी मोर देन एपोफेरेटिन, देन हीम विल बी कन्वर्टेड टू द हैमिन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फेरस टू द फेरिक, बिकॉज हमारे पास एपोफेरेटिन इतना नहीं है जितना हमारे पास हीम में स्टोर हो गया है. देन इट विल बी कन्वर्टेड टू द हैमिन एंड ALA synthase will be decreased. You can say that Hammond and the ALA synthase work oppositely. हीम इंक्रीज़ होगा अगर तो हमारे पास ALA synthase की एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर हमारे पास हीम डिक्रीज़ होता है तो ALA synthase की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारे पास ड्रग इफेक्ट में होता है. हैमन इफेक्ट एंड द ड्रग इफेक्ट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ड्रग इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, ड्रग्स से हमारे पास ALA synthase की एक्टिविटी हाई हो जाती है. द रीज़न इज़ दैट ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय cytochrome monoxygenase system in the liver. As you know very well that cytochrome monoxygenase system uses and consumes heat, हीम. जब हमारे पास हीम की कंजप्शन हाई हो जाएगी एंड हीम का लेवल लो हो जाएगा तो हमारे पास ALAS1 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. This is the Hammond effect and the drug effect. Now let's move to the second step of the heme biosynthesis, which is the porphobilinogen formation. Porphobilinogen formation will take place in cytosol. It is a cytosolic condensation of two ALA molecules in the presence of ALA dehydratase, which is a zinc containing enzyme, and porphobilinogen will be formed. And the second thing you will keep in mind that ALA synthase is of two types, ALAS1 and ALAS2. ALAS1 is for all the tissues and the ALAS2 is specific for erythroid tissues. So any mutation when will occur in the ALAS2, it will lead to sideroblastic anemia. It's the second MCQ which can be asked in the exam. Now move to the third step. One more thing, that the first step and the last three step of the heme biosynthesis will be taken place in mitochondria, and the remaining middle steps will be taking place in cytosol. Now uroporphyrinogen formation, which is the third step. 4 molecules of porphobilinogen will condense. Again condensation will occur. 4 molecules of uroporphyrinogen will condense to form tetrapyrrole hydroxymethylbalamine in the presence of hydroxyvalent synthase. Okay, the other thing is here is the condensation will again occur and it is the intermediate step. hydroxypyrrole जो हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है टेट्रापायरोल हाइड्रोक्सीमिथाइलबाइलाइन, ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप है. एंड यू कैन कीप इन माइंड अदर थिंग, इन एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है. सो अगर आप लोग इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे पोर्फायरियाज को भी, सो इट विल बी टू मच ईजी टू रिमेंबर. देन द थर्ड स्टेप इज आइसोमेराइजेशन. यहाँ पे टेट्रापायरोल लिंक बन गई है. अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दी चलूँ मैं पोर्फायरिया के को रिलेट करके कि हमारे पास जब पोर्फायरिन रिंग फॉर्मेशन नहीं हुई होती है तो हमारे पास कौन से सिम्टम्स आते हैं, मैनिफेस्टेशन जो होती हैं क्लिनिकल, वो हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं और GIT सिम्टम्स होते हैं. अगर हमारे पास पोर्फायरिन ये हमारे पास जो पोर्फायरिन रिंग बन गई है, इसके बाद के जो स्टेप्स हैं इसके अंदर हमारे पास जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो हमारे पास फोटोसेंसिटिविटी की होती हैं, वो हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स की नहीं होती हैं.
तो इससे पहले की जो एंजाइम है अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो आप जो है बगैर कुछ आंख बंद करके कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम होंगे और जीआईडी सिम्टम होंगे। और अगर पायरोल रिंग फॉर्मेशन हो चुकी है उसके बाद के स्टेप्स है देन यू कैन से दैट इट्स अ फोटोसेंसिटिविटी इफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। ओह सॉरी, आइसोमराइजेशन हो गई यहाँ पे। यूरोपॉर्फिनोजन सिंथेज 3 सिंथेज की प्रेजेंस में यूरोपॉर्फिनोजन 3 बन गया। यूरोपॉर्फिनोजन 3 की डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज। ये नाम रखना बहुत याद रखना बहुत आसान है कि कहाँ पे हमारे पास आइसोमराइजेशन हो रही है, कहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, और एंजाइम के नाम पे हम उसके साथ सिंथेज, डीकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। थर्डली हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास यूरोपॉर्फिनोजन डीकार्बोक्सिलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप लोग पायरोल रिंग्स देखें कॉपरोपॉर्फिनोजन और यूरोपॉर्फिनोजन की, तो कॉपरोपॉर्फिनोजन में हमारे पास मिथाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास उसमें जो है एपी प्रेजेंट होता है, एसिटेट एंड प्रोपेनाइट प्रेजेंट होता है। तो अब जब हमें उसको इसकी मिथाइलेशन करनी है तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन करनी होगी, उसको मिथाइल में कन्वर्ट करना है, देन डीकार्बोक्सिलेशन इज नेसेसरी। कॉपरोपॉर्फिनोजन 3 विल बी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपरोपॉर्फिनोजन ऑक्सीडेज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है बट फर्स्टली डीकार्बोक्सिलेशन होगी 2 प्रोपेनेट की, देन ऑक्सीडेशन विल अकर टू विनाइल। अगर हमें प्रोटोपॉर्फिनोजन बनाना है, एज यू नो वेरी वेल प्रोटोपॉर्फिनोजन इंक्लूड्स मिथाइल, विनाइल एंड प्रोप्योनेट, ऑल 3। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें 2 प्रोपेनेट को विनाइल में कन्वर्ट करना है, तो प्रोटोपॉर्फिनोजन 9 बनेगा। ऑक्सीडेशन हो गई, प्रोटोपॉर्फिनोजन 9 बन गया। अब प्रोटोपॉर्फिनोजन 9 की ऑक्सीडेशन करके हम इसको प्रोटोपॉर्फिन 9 बनाएंगे। एंड द स्टेप्स आफ्टर कॉपरोपॉर्फिनोजन फॉर्मेशन विल बी टेकन प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देन हमें उसको जब हमारे पास आयरन ऐड करवाना है तो हमारे पास फेरोकिलेटेज एंजाइम यूज़ होगा एंड आयरन will be added to protoporphyrin 9 and the heme will be formed. सेकेंड थिंग जो हमें याद रखनी है फेरोकिलेटेज और हमारे पास जो फर्स्ट एंजाइम था एलिस सिंथेज, ये दोनों these 2 enzymes will be inhibited by lead and the last 3 step will be occur in mitochondria. This is all about heme synthesis. It's too much easy if you learn